which is terrestrial mangrove, and so it is very important. Then regarding the Ceropegia, I have told you about 30 different species of Ceropegia which are available in Western Ghat itself, and many of these species are endemic to Maharashtra. Then Cryptostegia grandiflora, Calotropis procera, which is well-known plant to all of you. Then next plant, Pyrgularia demia or Demia extensa. As far as Pyrgularia demia or Demia extensa considered, it is known as in Marathi, which is known as a Uttaran whale or Uttaran whale. Then Oxystelma, I think all of you have seen or observed the photographs of these different plants. I have told you regarding Gymnema sylvestris, that is Kauri, which is responsible for paralyzing sweet taste buds of our mouth, and that's why it is wrongly considered as Ayurvedic medicine. Then we come across Synancum, Tylophora asthmatica, Stapelia species, Brachystelma, Hoya, then Seshagiria, and many more species we have studied. Out of these, I have told you regarding Vatacaca volubilis, or which is known as a Patria volubilis, again belongs to family Asclepiadaceae and having interesting characteristic feature. Now my part is that you should be known with at least some important characteristic features of this family. No doubt we have gone through each and every photograph, but I would like to summarize this family within a shortest possible characteristic feature which you should be known. So in our country, this family represented by Asclepias, Calotropis, Ceropegia, then Asclepias corasavica, Calotropis gigantea, Calotropis procera, and many more species of Ceropegia. These are available abundantly in our surrounding. Calotropis procera, which is well known to you with its all characteristic features, that is vegetative as well as reproductive characteristic feature, which are known to you. So no need to explain. But the important feature that is regarding this gynostagium, I again repeat this portion, which is gynostagium, because this is a stegmatic disc pentangular. At every corner, it shows presence of pollen sacs or pollinia, that is by means of corpusculum and caudicle. They are attached and they show presence of waxy pollen grain. So presence of waxy pollen grain and specialized type of anther is characteristic feature of this family. Besides this, I have told you regarding one of the important species, Ceropegia, and as far as Ceropegia considered, in Ceropegia pollen windows are present. We have come across many more other characteristic features of this family. इस फैमिली के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखे हैं. अब हम सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ देखते. Roots of Tylophora indica or Tylophora asthmatica are used for treatment of asthma. मैंने अभी लिखा है यहाँ Tylophora indica, लेकिन मैंने बताया था Tylophora asthmatica. That is related to treatment of asthma, bronchitis, whooping cough, and various diseases of the bronchial tract. The dried roots of Sarcostema acidicum is emetic, and infusion of root is used as antidote for snake bite. Root bark of Calotropis are anthelmintic, laxative, diuretic, and useful in cautious diseases, cutaneous diseases. Cutaneous का मतलब है स्किन पर जो है वो. अब रिगार्डिंग डायूरेटिक मीन्स यूरिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डायूरेटिक. जिम्निमा सिल्वेस्ट्रिस इज स्टोमॅचिक मतलब पोटदुखीवर काम करणारा. स्टिम्युलंट म्हणजे उत्साहवर्धक, भूक वाढवणारा. लॅक्सेटिव्ह का मतलब है पाचक. And diuretic and useful in cough, biliousness, and sore eyes. Dried root of Hemidesmus indicus constitutes cute Hemidesmus or Anantamul, which is blood purifier. It is used in chronic rheumatism. Rheumatism म्हणजे संधिवात, and urinary and skin infections. Leaves of Cosmostagia are used to curb ulcerous sores. The latex of Oxystelma is used to wash ulcerous wounds. अल्सरच्या वुंड जे आहेत त्या वॉश करण्याकरता. Then regarding the edibles, tubers of Ceropegia and fruits of Oxystelma are edible. Fruits and young twigs of Leptadenia are eaten as a vegetable.
Then source of rubber. I think it is best known to you. Family Euphorbia is really the source of rubber. Have you heard about Ashwini Kumar? Hello, hello. क्या आप Nice. लोगों ने Ashwini Kumar are supposed to be doctors of a Dev or Deva. Just a minute. Ashwini Kumar. Yes. So have you heard about this Ashwini Kumar? Horse like forehead. Hello. No, sir. In Hindu mythology, there are so many devatas, and out of that, one is Ashwini Kumar, and they are supposed to look after your health. And Ashwini Kumar are supposed to be doctors of a god, or Vaidya of a god. To be more precise, Vaidya of a god. To be more precise, I think you might have heard some mythological stories, and in these mythological stories, I think these Ashwini Kumar, I don't remember now, but somebody from Mahabharata has utilized, शायद अश्वत्थामा से इनका रिलेशन था. अश्वत्थामा दूध पीता था, और ये जो छोटे गरीब थे, इनको दूध नहीं मिलता था, तो उनको पिताजी उनको अपना फ्लोर वाटर में मिक्स करके दूध करके देते थे. और ये लोग जब गाय चराने के लिए जब जंगल में जाते थे, तब इन्होंने देखा कि मिल्की लैटेक्स आता है, तो इन्होंने जानबूझ के नहीं, लेकिन बेवजह इन्होंने क्या किया, एक द्रोण बनाया. उस द्रोण में इन्होंने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का लीफ या पार्ट कट करके जो व्हाइट लैटेक्स आता है वो जमा किया और उसको प्राशन किया एज अ मिल्क. क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Unfortunately, that milky latex reaches up to the eyes, and that's why they become blind. So such a type of story is available in Mahabharata. Whatever it may be, these are stories. These may not be a real thing, but this latex which is available in the Calotropis plant, this latex is very useful. It is used in various skin diseases. खास करके अलग अलग टाइप के जो स्किन डिसीजेस है, स्किन डिसीजेस पर ये latex यूज करता है. The latex of Calotropis is used in tanning industry for deodorization. Deodorization मतलब किसी चीज का अगर स्मेल है तो स्मेल निकालने के लिए. For removing hair and imparting yellow color to hides. जब स्किन का एनिमल स्किन जो है उसको जब टैनिंग करते हैं तो उसको डीओडराइजेशन करना और उसका टैनिंग करना जरूरी होता है. और डीओडराइजेशन के लिए कैलोट्रोपिस लैटेक्स इज ऑलवेज यूज. Latex of Cryptostasia is commercial source of a rubber. That means काफी मात्रा में क्रिप्टोस्टेजिया का भी यूज करते हैं. I have shown here various photographs of Asclepias curasavica, then Brachystegia, Pyrgularia, Demia or Demia extensa, then single flower as well as fruit and gyrospadium in case of Asclepiaceae. Then these are some of the photographs of Ceropegia. But now important thing for me, मेरे लिए जो important thing है उसके बारे में बताता हूँ. नॉर्मली मैं हर प्रेजेंटेशन में आखिरी में रेफरेंसेस एंड थर्ड पार्टी लिंक्स देता हूँ. उसका रीजन ये है कि आप वहां से कॉपी करो, लिंक आप पेस्ट कर लो, या नहीं तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी लिंक को यूज कर सकते हैं. एंड यू गो थ्रू वेरियस यूट्यूब वीडियोज विच आर अवेलेबल. फ्यू ऑफ दीज वीडियोज आर आल्सो अवेलेबल इन regional language like Hindi, and that's why it is easy to understand. Now the thing, very important thing is that we are going to explain each and everything. I am going to give you several examples, but I know that few of you may not be able to hear it properly or mug it properly. आप में से कुछ लोगों ने मैसेज डाला था कि सर प्लीज हिंदी में बता दीजिए. हो सकता है मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं तो कम होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम इश्यूज है, तो फील फ्री टू आस्क मी. Now, in spite of all these things, as far as Asclepiaceae is considered, you should remember 5 to 6 very important characteristic features. The first one, opposite decussate type of phyllotaxy observed in case of leaves, normally in case of this family.
अस्कलपेडियेसी में नॉर्मली फाइलोटैक्सी अपोजिट डिकसेट होती है, मतलब पहले नोड पर जो लीफ ईस्ट वेस्ट है उसके सक्सेसिव नोड पर वो नॉर्थ साउथ रहेंगे एंड सो ऑन. So such a type of phyllotaxy which is known to you. So opposite decussate phyllotaxy is characteristic feature of this family. Then another polycassial cyme type of inflorescence. So inflorescence is no doubt cyme, but to be more precise, it is a polycassial cyme type of inflorescence in family Asclepiaceae. Then interesting part another presence of gynostagium. अब gynostagium के बारे में मैं बताता हूँ. Anthers are present on the corners of a stigmatic disc in the form of a pollinia, and such a type of arrangement is known as a gynostagium. Then next one, presence of corollary corona. Corollary corona, that is extension from stigma of a gynoecium up to the corolla, is known as a corollary corona. अगर मराठी में बताना है तो रुईच्या फुलामध्ये जो हत्तीच्या सोंडेसारखा पोर्शन दिसतो, that is nothing but the corollary corona. Corona means extension, because in flower there are four important parts, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. But in case of रुई और in case of calotropis flower, just a minute मैं आपको calotropis flower diagram दिखाता हूँ. Calotropis flower, so that you have idea. तो आप लोग अभी ये सब देख रहे हैं. सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ कैलोट्रोपिस फ्लावर. लेकिन मुझे आपको दिखाने में जो इंटरेस्ट है वो कैलोट्रोपिस की एलएस दिखाना है, दैट इज फ्लावर एलएस, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. हम देखते हैं क्या इन्होंने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कहीं दिखाया है. तो अभी आप ये फ्लावर देख लो, ये ब्लूइश कलर का स्टिग्मेटिक डिस्क से लेकर करोला तक का ये जो एक्सटेंशन है 1, 2, 3 and 4, this extension is not part of gynoecium, not part of androecium, and even not part of corolla, and so this extension is known as corollary corona. That means corona which is extended up to corolla, and so it is known as a corollary corona. You get it? आपके ध्यान में आ रहा है मैं करोलरी कोरोना किस चीज को बोल रहा हूँ? Yes, sir. So this bluish colored structure is known as, नहीं आया ध्यान में? सर आ गया समझ. हाँ, और एक बात मैंने आपको बताई थी कि श्वेत मंदार यानी व्हाइट रुई, सफेद रुई. यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाइट रुई और इट इज आल्सो नोन एज अ श्वेत मंदार. मंदार यानी गणेश जी या गणपति, and so it is known as a Shweta Mandar. You can observe here a pentangular disc. I am trying to show you Calotropis gynostagium. So presence of gynostagium is interesting characteristic feature of this family. Now you can observe this one. आप यहाँ देख सकते हैं, देखो, this one is extension, that is corolla. Corolla, that is annulus of corolla, and you can observe here presence of two ori. This one is gynoecium, that is stigmatic disc. So this is a cross section. लेकिन आपको जो देखना है, the structure is like this one. Just a minute. डायग्राम अगर enlarge होती है तो और अच्छा. यस, आप यहाँ देख सकते हैं पेंटेंगुलर डिस्क है और ये दो है और ओहरी भी दो है. सो ओहरी इज बाइकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर बट having a pentangular disc. So such a type of arrangement is interesting characteristic feature in this family, that is Calotropis. मैं 2-3 लाइन में अभी Calotropis या फैमिली Asclepiaceae को डिस्क्राइब कर रहा हूँ. Asclepiaceae is one of the interesting and important family of angiosperm which shows wide abundance. Most of these are climbers or they may be shrub or undershrub. Very rarely trees are available. As far as this family considered, presence of opposite decussate type of phyllotaxy, presence of polycassial cyme type of inflorescence, presence of pollinia, presence of gynostagium, presence of corollary corona, presence of white or milky latex, presence of hairy structures covering to various plant parts. These are the diagnostic characteristic features of this family.
So I think no more need to explain much more regarding this family, because we have completed it. We require about, hello, we require about 2.5 lectures to complete this family, and hence I should stop here. If you have any difficulty or any problem, you can ask it to me later. Is it okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then I have already told you that today we are going to study another family, and name of another family is Ephorbiaceae. Have you heard the name of this family, Ephorbiaceae? Hello? Yes, sir. Yes, क्या sir. आपने नाम सुना है? Yes, sir. कौन से प्लांट मालूम है आपको Yes, sir. Ephorbiaceae से? हेलो, Ephorbiaceae फैमिली से आपसे कोई प्लांट मालूम है? नहीं है तो नहीं है, बता दो। मैं बहुत सारे प्लांट बताने वाला हूं, दोज व्हिच आर नोन टू यू। चलो, आपको प्लांट मालूम नहीं है ऐसा समझ के मैं आपको कुछ प्लांट्स के पहले फोटोग्राफ दिखाता, सो दैट यू से दैट यस वी आर नोन विद दीज प्लांट्स। अभी आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ की तरफ ध्यान दे दो, डिस्क्रिप्शन क्या है उसके तरफ मत सोचो। क्या बैकग्राउंड पर जो कुछ भी प्लांट देख रहे हैं, इसमें से कोई प्लांट आपने इसके पहले देखा है? हेलो? यस सर, देखा तो है। कुछ प्लांट देखे हैं। चलो, इसमें से कुछ प्लांट देखे हैं? यस सर। यस। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, यानी टॉप Yes, वाले sir. तीनों और यस बॉटम सर, वाला, ये रेड कलर। यस हाँ रेड सर। कलर का, मतलब ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है और ये भी देखा है आपने। कम से कम ये दो तो देखे होंगे। हेलो? यस सर। कहाँ देखे हैं? कोई बता सकता है? हेलो? कहाँ Yes, देखे sir. हैं? कोई बता सकता है? अपने कॉलेज में आप जैसे एंट्री करते हैं, वैसे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कैरी में जो प्लांट्स है उसमें शायद आपने ये प्लांट देखा होगा। एंड नेम ऑफ द प्लांट इज एक्यालिफा। एक्चुअली दीज प्लांट्स इसमें से दो प्लांट एक्यालिफा हिस्पिडा है, दिस वन एंड दिस वन, एक्यालिफा हिस्पिडा, and this one and this one, these two plants are Acalypha wilkinsiana. So I think most of you might have observed both these plants, that is Acalypha. नहीं तो मैं और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, so that it is easy to remember. Just a minute. Acalypha. Yes. क्या आपने ये प्लांट देखे नहीं है सभी? यस सर, देखा है। ये देखा प्लांट है। आपने सभी Yes, प्लांट देखे हैं, शायद Yes, गार्डन में होंगे, नहीं तो हेज प्लांट करके बॉर्डर पे लगाते हैं। हाँ, यस सर। कलरफुल लिप रहते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल ये लेने की जरूरत नहीं है। चलो, और एक बताता प्लांट, कोडियम। शायद ये भी प्लांट आपने देखा होगा और अपने ही प्रीमाइसेस में। जस्ट मिनट, कोडियम इफोर्बिएसी। क्या ये प्लांट देखा है आपने? यस Yes, सर। sir. ये प्लांट शायद आप सभी ने देखा है। कहाँ देखा है? एनीबडी? हेलो? Yes, sir. सर वो न्यू लाइब्रेरी के तरफ जाते हैं ना, हाँ, उधर न्यू कैंटीन लाइब्रेरी के की तरफ। तरफ भी है, अंदर अपनी लैब में जहाँ पोहेकर सर बैठते हैं, वहां से आप यूजी लैब जाते हैं, उस एरिया में भी है। सो दिस वन इज अ कोडियम, दिस आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली इफोर्बिएसी। जरा मोबाइल में, सो दिस आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली इफोर्बिएसी। क्या आपने ये लाल वाला प्लांट देखा है? हेलो? नो सर। रेड फ्लावर वाला प्लांट देखा है? नहीं? नहीं सर। चलो, अगर नहीं देखा है तो मैं इस प्लांट के बारे में आपको बताता हूँ। ये प्लांट भी अपने इंस्टीट्यूट में, अपने गार्डन में है। कहाँ है बताता हूँ। अपना जो ग्रीन हाउस या वायर हाउस है वो तो देखा होगा,
वहां कुंडियों में ये प्लांट है, बहुत छोटे बटन साइज के फ्लावर रहते हैं। ये दो मिला के दो, यानी दो पेटल जैसे पोर्शन दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 2 फ्लावर्स ऑफ बटन साइज। एंड दिस स्पेसीज इज इफोर्बिया, जस्ट अ मिनट, शायद आपने देखा होगा इफोर्बिया MILLI, मिली, इफोर्बिया मिली। शायद आप लोगों ने बहुत बार ये प्लांट देखा है। अब बताओ, एनीबडी हाँ देखा है सर। देखा है? यस ये सर। सेम प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट नहीं है, सेम प्लांट है। पॉट्स में लगाते हैं, इसमें अलग अलग कलर्स भी है। सो हाँ, जस्ट ये देखो। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर प्रेजेंस ऑफ अ स्पाइनी स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ दिस प्लांट इज इफोर्बिया स्प्लिंडेंस, या इट्स नेम इज इफोर्बिया मिली। और एक प्लांट मैं आपको बताता हूँ which belongs to family Ephorbiaceae and it is Euphorbia तिरुकली। जस्ट अ मिनट, क्या आपने ये प्लांट देखे हैं? बहुत बड़ा प्लांट होता है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रूरल एरिया में ये प्लांट के ट्विग जो है वो घर में ऐसे छत को लटका के रखते हैं। शायद देखा होगा किसी न किसी ने। हेलो, ये प्लांट देखा है क्या नहीं देखा? नहीं सर। ये नो ये सर। ये प्लांट भी अपने प्रीमाइसेस में है, कुंडी यानी पॉट्स में लगाते हैं। एंड दिस वन इज आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली इफोर्बिएसी एंड नेम ऑफ द प्लांट इज इफोर्बिया तिरुकली। सो आई थिंक यू आर नोन विथ एटलीस्ट फ्यू ऑफ दिस प्लांट्स। चलो, आज नयन आया है क्या? नयन, हेलो, नयन आया है? नयन दिखाड़े, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। हेलो, मुझे एक जरूरी कॉल था। आप Yes, थोड़ा sir. फोटोग्राफ देख लो, थोड़ा सा फोटोग्राफ देख लो, तब तक मैं बता देता आपको। Okay, sir. हेलो, हाँ, तो आप सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। so we were speaking about this family, that is family Ephorbiaceae, and in case of family Ephorbiaceae I have shown here some of the photographs. I have told you that you just observe the photograph. उसके बाद नेक्स्ट वन इफोर्बिया पल्चेरिमा। क्या आपको ये प्लांट दिखता है? जस्ट मिनट, इफोर्बिया पल्चेरिमा दिख रहा है क्या नहीं? हेलो, यस सर। इसको शायद बोलते हैं लाल पत्ती। मैं आपको थोड़ा अलग Yes, जगह sir. से, जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा अलग जगह से ये प्लांट दिखाता हूँ। इफोर्बिया नाम मैंने बताया था पल्चेरिमा, PULCHEERIMA, इफोर्बिया पल्चेरिमा। क्या आपने ये प्लांट देखा है? देखा है क्या नहीं? चलो, ये तो देखा होगा, देखा है। देखा है, ये प्लांट आप सभी ने देखा है। एंड दिस वन इज इफोर्बिया पल्चेरिमा, और इट इज आल्सो नोन एज लाल पत्ती, बिकॉज लीफी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व टुवर्ड द अपेक्स, एंड सो इट इज नोन एज इफोर्बिया पल्चेरिमा, और इट इज नोन एज लाल पत्ती। इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंटल वैरायटीज आर अवेलेबल। मैं आपको एक सिंपल उसमें से दिखाता अपेक्स की तरफ। I think you might have observed. और एक दिखाता हूँ, इफोर्बिया हिर्टा। I think it is a common weed and you might have observed this one. क्या आपने ये प्लांट देखा है? इफोर्बिया हिर्टा, एनीबडी? कॉमन फील्ड का वीड है इफोर्बिया हिर्टा। मराठी में इसको बोलते हैं दूधनी, नहीं तो और एक बताता हूँ, इफोर्बिया जेनिक्युलेटा। जस्ट अ मिनट, क्या आपको प्लांट दिख रहा है इफोर्बिया जेनिक्युलेटा? क्या आप लोगों ने ये प्लांट देखा है? प्लांट देखा है? ये भी अपने प्रीमाइसेस में प्लांट अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो थोड़ी बात अलग है, मैं दूसरा बताता हूँ। इफोर्बिया नहीं, हाइलैंथस, जस्ट मिनट, हाइलैंथस इंब्लिका,
कौन सा प्लांट है ये? एनीबडी? आवला का पेड़ आवळा आवला yes Avla. sir So all of you might be known, it is commonly also known as Indian gooseberry, or it is known as avla. And all of you might be known, it is much famous fruit in Ayurveda. It has a huge uses or utilities, and specifically it is used as a part of Triphala Churna and in a famous Ayurvedic drug that is Chyawanprash. It is the base of Chyawanprash. So I think you are better known. What are the different uses of avla? Anybody? Hello? All of you might be known, it is a source of vitamin C and which is used for variety of different purposes. Even बाल धोने के लिए शैम्पू जो बाल का बनाते हैं उसमें भी आंवला होता है. Avla extract is also useful. So avla also belongs to family Euphoraceae. So no need to explain much more regarding this family. मैं बहुत ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट प्लांट देख लो, इपोर्विया हिरटा, फाइलैंथस एमरस, और एक प्लांट यहाँ दिया है दैट इज रिसिनस कम्युनिस. अब रिसिनस कम्युनिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्लांट खुद दिखा देता, सो दैट RICINUS कम्युनिस, कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस. क्या आपने ये प्लांट देखा है? एनीबडी? हेलो? Anybody has observed this plant? एरंडी माहिती आहे? एरंडी? हो Yes, सर sir. एरंड किंवा तुम्ही म्हणता एरंडी. फॉर एक्झाम्पल एरंड म्हणतो किंवा मराठीत एक म्हण आहे, एरंडासारखा वाढला. म्हणजे विदाउट एनी रिझन दिस और विदाउट एनी स्पेशल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दिस रिसिनस और एरंडी इज ग्रोइंग. इस प्लांट का यूज क्या करते मालूम है कुछ तो? एनीबडी? ऑयल बनाते ना सर. ऑयल बनाते ना सर. अच्छा, ऑयल बनाते. वेदर दिस ऑयल इज एडिबल और नॉट? नहीं सर एडिबल नहीं है. एडिबल नहीं है. एडिबल नहीं है, लेकिन उसको यूज करते पेट साफ करने के लिए. एंड इट्स विस्कोसिटी इज मोर, सो इट इज सपोज टू बी बेस्ट क्वालिटी लुब्रिकेंट. सबसे अच्छा लुब्रिकेंट समझा जाता है इसको, अपने एरंडी को. सो एरंडी belongs to this family, that is Ricinus communis or family Euphoraceae. अब उसके नेक्स्ट मैंने और एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ. कुछ तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरल पार्क्स है. और अब देखो, दिस वन दैट इज मैनीहॉट स्क्यूलेंटा. क्या आप लोगों ने मैनीहॉट स्क्यूलेंटा के बारे में सुना है? एनीबडी? हेलो? यस सर. स्वीट पोटैटो दिख रहा है. स्वीट पोटैटो नहीं है. दिस प्लांट इज मैनीहॉट स्क्यूलेंटा. एक सेकंड, मैनीहॉट मैं बताता हूँ क्यों ऐसा दिख रहा है आपको. स्क्यूलेंटा, अपन जब अपने गार्डन में जाते हैं तो वायर हाउस के सामने एक प्लांट आपने ऐसा देखा होगा, है? हेलो? Yes. Yes sir. So this is ornamental species of Manihot esculenta. इसके अंडरग्राउंड ऐसे बड़े बड़े राइजोम्स रहते हैं. These rhizomes are storage material of a starch. जैसे आपने शकरकंद देखा है, Yes sir. शकरकंद जैसा ही है ये. मैं इसके लिए बाद में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ. Manihot esculenta is cultivated on the large scale in the Kerala state, and from this manihot साबूदाना is prepared. साबूदाना मालूम है आपको? हाँ. यस सर. ग्रेन्स, व्हाइट कलर के जो ग्रेन्स आते हैं, वो व्हाइट कलर के ग्रेन कोई फ्रूट नहीं है. ये मैनीहॉट स्क्यूलेंटा का जो राइजोम है, राइजोम को बॉइल करते, वॉश करते, थरली वॉश करने के बाद उसका जो स्टार्च है, उस स्टार्च के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाते. दैट इज नथिंग बट व्हाटएवर वी यूटिलाइज साबूदाना. यू गेट इट? हेलो? यस सर. Yes, क्या sir. आपके ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साबूदाना जो बनाते हैं वो साबूदाना इट इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री फ्रॉम दिस मैनीहॉट स्क्यूलेंटा ट्री. ये देख रहे हैं आप, साबूदाना अपन घर में यूज करते क्या नहीं? हाँ सर.
तो ये साबूदाना स्टार्च है, इट इज नथिंग बट स्टार्च, एंड दिस स्टार्च इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट ऑफ अवर प्लांट दैट इज मैनीहॉट स्क्यूलेंटा। इसके रूट का, राइजोम का जो पोर्शन है, वहां से स्टार्च निकल के उससे साबूदाना बनता है। सो इट आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली। सो दिस मैनीहॉट स्क्यूलेंटा इज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। Few of the plant including Ricinus communis used for purpose of oil, lubricant and purgative। castor oil के बारे में अभी अभी बताया था। Milky juice of many plants like Manilal merculiasis has deadly poisonous है। अब इकोनॉमिक यूजेस, मेडिसिनल यूजेस, फाइलैंथस इम्ब्लिका या आवड़ा के फ्रूट्स जो है हैविंग मेनी मेडिसिनल यूजेस, no need to explain much more. Then regarding the Hevia, rubber is obtained from Hevia brasiliensis। शायद मैंने आपको प्लांट बताया नहीं था, लेकिन मैं यहाँ जस्ट आपको बताता हूँ। वन मोर प्लांट दैट इज Hevia brasiliensis, and this Hevia brasiliensis is nothing but टैपिंग ऑफ रबर। शायद आपने फोटोग्राफ में दिख रहा है आपको। Yes, sir. Again, it is largely on the large Yes, sir. scale. It is cultivated in the Kerala. केरळा मध्ये ह्या रबर प्लांटचे बगीचे किंवा बागा असतात आणि त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीनं रबर टॅपिंग करून रबर काढला जातो। सो दिस रबर आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली इफोर्बिएसी। देन नेक्स्ट क्या है हम देखते, ornamental plants, Euphorbia splendens, Euphorbia milli, Euphorbia pulcherrima, these are ornamental plants. Then there is Chrozophora, this Chrozophora gives dye। Then next कोडियम, आप लोगों ने अभी अभी कोडियम के बारे में देखा था। कोडियम के बहुत सारे वैरायटीज है, यहाँ फोटोग्राफ दिखता है। मैं चाहे तो और भी आपको बताता हूँ। जैसे आप कॉलेज में एंट्री करते हैं वहीं पे आपको कोडियम के बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं। CODIAU, जस्ट मिनट, CODIAU कोडियम प्लांट। अलग अलग, बहुत अलग अलग टाइप के कोडियम के प्लांट्स आपने देखे हैं, देख रहे हैं। हेलो, हाँ सर। अपने कॉलेज Yes, sir. प्रीमाइसेस में आप जैसी एंट्री करते, कैरी में दोनों तरफ ये कोडियम के प्लांट्स है। दे बिलोंग्स टू फैमिली इफोर्बिएसी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कोडियम देखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कोडियम की वैरायटी देखी होगी। अपने कॉलेज में इसके बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल है। सो कोडियम, कोडियम, croton, these are the important plants from this family. Then Euphorbia antiquorum, various different types of Euphorbia के कैक्टाई जैसे प्लांट दिखते हैं। हेविया ब्राजिलियंसिस का हमने अभी अभी देखा, मैनीहॉट स्क्यूलेंटा शकरकंद का देखा, फाइलैंथस इम्ब्लिका मतलब आवड़ा के बारे में हमने देखा। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस फैमिली। अब मुझे आपके लिए और एक जरूरी बात बताना था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो लिंक दिए हैं आप लोग सुन रहे हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस लिंक विल बी ओपन। क्या आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, Yes, sir. बस 5 मिनट पे आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट, 1:20 को खत्म हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ। नाही, कोरपेलवर, हा कॉन्टॅक्ट तुम्ही तिथे तुम्ही कोणालाही विचारा, कोरपेलवर म्हणून मी बोललेलो आहे त्याला। हाँ, क्या आप लोग सुन रहे हैं ये? Yes, हेलो, sir. आवाज आ रहा है? Yes, Nice, sir. sir. Okay, so as far as these different plants considered, just a minute, मैं ये पहले नहीं। बंद कर देता हूँ, just a minute। just a minute।
हेलो हेलो Yes, sir. हाँ, so Yes, sir. these are the different plants available from family Iporbiaceae. मैंने आपको सिर्फ Iporbiaceae को इंट्रोड्यूस किया है. I have not taken any of the characteristic feature of Iporbiaceae. मैं अगर आपको डायरेक्टली बताता कि Iporbiaceae में इतने सारे प्लांट्स हैं तो it was not possible. नेक्स्ट हम एक देखते हैं. अभी एक्यालिपा हिस्पिडा हमने देखा है, एक्यालिपा विल्कन्सियाना हमने देखा है, बिस्चोफिया जवानिका प्लांट की फिगर आपने देखी है अभी. उसके बाद ब्राइडेला रेट्यूसा, ये भी फिगर आपने देखी है. उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है क्लिस्टेंथस कोलिनस. कोई आप में से चंद्रपुर गढ़चिरौली से है? हेलो, क्लिस्टेंथस कोलिनस या गराडी नाम का प्लांट सुना है? गराडी, हाँ सर. गराडी शायद आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ. ट्राइबल एरिया में ये जो गराडी के प्लांट्स है उसके स्टेम के पीसेस झोपड़ी का लकड़ा जो झोपड़ी को लगता है वो बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट. So Clistanthus colinus is known as garadi and it is one of the important plant in the tribal area. उसके बाद Croton aromaticum, Croton oblongifolium, उसके बाद Croton pizellum, Bacura curculatis. So these plants. अब Galeospermum montana, अब Galeospermum montana प्लांट जो है फोटोग्राफ आपने देखा था, लेकिन अगर ध्यान में नहीं रहा तो भी नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन में आप देख सकते. Galeospermum montana is also known as a दंती. Euphorbia milli, Euphorbia splendens आपने अभी देखा है. Euphorbia pulcherrima मतलब Poinsettia pulcherrima या लाल पत्ती आलसे आपने देखा है. Euphorbia पिरुकली मैंने आपको दिखाया था. Euphorbia hirtaya तुझी दिखाया था. फिर देखते Euphorbia thymifolia, Euphorbia anticorum. Then one more plant, important plant, that is Glochidion zelanicum या Glochidion hoinkeri. So these plants are also might be known to you. Various species of Jatropha, Manihot esculenta या Topiaco, Hevia braziliensis या Para Indian rubber, Malotus philippinensis. शायद आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं ये एक प्लांट जरूर दिखाऊंगा आपको. एंड द नेम ऑफ प्लांट इज Malotus philippinensis. Just a minute. It is a Malotus philippinensis. मैं जानबूझ के ये प्लांट आपको दिखा रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि इसके फ्रूट्स जो है फ्रूट्स रेड कलर के होते हैं, डार्क रेड कलर के. एंड इन मराठी इट इज आल्सो नोन एज कुंकू फल, Malotus philippinensis. शायद एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये देखा जाता है. इन महाराष्ट्र, इन द एरिया ऑफ महाबळेश्वर, पाचगणी, वाई, सातारा and a part of western Ghat, this Malotus philippinensis. Even in Koina Nagar, this Malotus philippinensis or कुंकू फल is observed widely. मैं जानबूझ के आपको पहले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद में सेकंड लेक्चर में फोटोग्राफ दिखाता हूँ, थर्ड लेक्चर में मैं नॉर्मली फैमिली का डिस्क्रिप्शन देता हूँ. सो यू कम अक्रॉस दिस Malotus philippinensis. उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन, Imblica officinalis, नहीं तो हम उसको बोलते हैं आवला, विच इज नोन टू यू. देन Putrangiva roxburghi. क्या मैंने इस प्लांट के बारे में कुछ बताया था? ये प्लांट भी अपने एरिया में अवेलेबल है. अपने एरिया में का मतलब है आप जैसे अमदार निवास की तरफ से एसएससी बोर्ड तक जाते हैं, इस रोड पर दोनों साइड ये पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी के प्लांट्स अवेलेबल है. जस्ट अ मिनट, पुत्रंजीवा कहा गया? पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी, एक मिनट. जस्ट पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी, पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी. इसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूम रखना जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ. इट इज अ जस्ट आप लोगों ने ये ट्री देखा होगा हिस्लॉप कॉलेज के बाजू में, नहीं तो एसएससी बोर्ड के बाजू में अपने यहाँ जो राजीव गांधी बायोटेक है वहाँ पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी. एंड दिस इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके सीड्स जो है, सीड्स छोटे छोटे बच्चों के गले में बांध देते हैं. पुत्रंजीवा मतलब पुत्र की रक्षा करने वाला.
so it is known as Putranjiva. So Putranjiva, Roxburghi, उसके बाद देखते क्या है, just a minute. Then Ricinus communis arundi के बारे में हमने देखा है, no need to explain much more. So these are the plants of this family. Now remember well, regarding family Euphorbia, we have about 16 plants available in our campus. अब एक 2 मिनट में फिनिश करता हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग है 1:30 बजे की, तो उसके लिए जाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेके हम खत्म कर देते. आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ. Yes, sir. Plants of this family are found throughout the world, however they are not found in Arctic region. Euphorbia का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखते हैं, लेकिन these plants are not observed in Arctic region. आर्किटिक का मतलब है पोलर रीजन. पोलर रीजन में इस फैमिली के प्लांट नहीं मिलते. मैं जस्ट आपको रीजन के बारे में बताता हूँ. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Euphorbia. क्या आप देख रहे हैं? फोटोग्राफ दिख रहा है आपको? Yes, sir. फोटोग्राफ में आप देखो, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट जो है, यानी अल्पाइन पार्ट जो है वो छोड़ के सभी रीजन में आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे. सो दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैमिली. इज इट आप लोगों को समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इस फैमिली का कैसा है एंटायर वर्ल्ड में? Because this family is comparatively available in the arid parts of world. World के arid parts में this family, plants of this family are available. In our country, family is represented by several genera such as Euphorbia, Ricinus, Phyllanthus, Croton, and Pedillanthus. In desert regions of Africa and elsewhere, the family is represented by cactus-like plants of different species of Euphorbia. हमने अभी देखा था Euphorbia hirta, Euphorbia pulcherrima, Euphorbia splendens, Euphorbia mili, Euphorbia geniculata, Euphorbia के बहुत सारे स्पेसीज हमने देखे थे. Heath-like Euphorbias are quite common in Australia. In Britain, only 2 genera, that is, just a minute. In Britain, only 2 genera of Euphorbia are quite common. In Australia, in Britain, 2 genera, that is Euphorbia and Mercurialisari, found, which are represented by 16 and 2 species. अब बाकी बचे हुए कैरेक्टर इस फैमिली के जो है और फोटोग्राफ्स जो है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी बचे हुए कैरेक्टर जो है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. हाउ मेनी प्रेजेंट थे आज सबसे ज्यादा? हेलो. 61. 61. 61. 51 या 61? 61. 61. ओके ओके, कोई बात नहीं है. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. Thank Thank you, sir. you.